हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें मलेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मलेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी डिजीजेस हैं उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। A wide range of organisms belonging to bacteria, viruses, fungi, protozoa, helminths, etc. could cause diseases in man. Such disease-causing organisms are called pathogens. Most parasites are therefore pathogens as they cause harm to hosts by living in or on them. देखो, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर रह के आपको हार्म कर रहे हैं, और एक्टोपैरासाइट्स जो बॉडी के बाहर रह के आपको हार्म कर रहे हैं। द pathogens can enter our body by various means, multiply and interfere with normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. Pathogens have to adapt to life within the environment of host. For example, the pathogens that enter the gut must know the way of surviving in stomach at low pH and resisting the various digestive enzymes. हमारी स्टमक में बहुत सारी digestive enzymes होती है, और लो पीएच एसिडिक एनवायरमेंट होता है, लो पीएच होता है, तो जो भी पैरासाइट हमारे पैरासाइट की बॉडी रेडी होनी चाहिए इन कंडीशंस से फाइट करने के लिए। मैं कितना आज फंबल कर रही हूँ। Few representative members from different groups of pathogenic organisms are discussed here along with the diseases caused by them. अभी हम diseases देखेंगे। Preventive and control measures against these diseases in general are also briefly described. First है हमारा टाइफॉइड। सैल्मोनेला टाइफी, ये टाइफॉइड कॉज करता है। इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया है ये, विच कॉजेज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमंस। दीज पैथोजेंस जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, और अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में परफोरिएशन हो जाते हैं, उसका मतलब है इंटेस्टाइन में छेद हो जाना, और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। थ्रू फूड and water contaminated with them and migrate to other organs through blood. फूड और वाटर से कॉज होते हैं, अगर हमने कंटामिनेटेड फूड और वाटर कंज्यूम किया तो, और फिर ब्लड के थ्रू बाकी ऑर्गन्स में भी ये ट्रैवल करता है सैल्मोनेला टाइफी। Sustained high fever 39 to 40 degrees Celsius, weakness, stomach pain, constipation, headache and loss of appetite are some of the common symptoms of this disease. Symptoms याद रखना, एक बार रीड कर लेना अच्छे से। Intestinal perforation and death may occur in severe cases, एकदम सीवियर केसेस में। Intestinal perforations मतलब इंटेस्टाइन में छेद हो जाना। Typhoid fever could be confirmed by, ये सबसे important question है, Vidal test. A classic case in medicine, that of Mary Malone, nicknamed Typhoid Mary, is worth mentioning here. She was a cook by profession and was typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. Cook थी वो एक, मैरी मेलॉन। ये भी क्वेश्चन आता है, और वो विडाल टेस्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निमोनिया। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल for the disease pneumonia in humans, which infects alveoli. ये alveoli को इन्फेक्ट करता है of lungs. As a result of infection, the alveoli get filled with fluid leading to severe problems in respiration. ये अगर हमारी सपोज alveoli है, यहाँ पे फ्लूइड फिल हो जाता है बहुत सारा, उसकी वजह से क्या होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट हार्ड हो जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो भी यहाँ से गैसेस ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड और इसके बीच में, वो हार्ड हो जाता है। So there is severe problems in respirations. The symptoms of pneumonia include fever, chills, cough, headache. In severe cases, lips and fingernails may turn gray to bluish in color. Okay, a healthy person acquires infection by inhaling droplets, aerosols released by infected person, like छींकने, खांसने से, इन सब droplets के spread होने से ही निमोनिया होता है। जैसे किसी ने छींक दिया और नाउ यू आर इनहेलिंग इट, तो फिर वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपके अंदर आके ये ऐसे इन्फेक्शन फैलेगा। इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीजेस इन ह्यूमंस। याद रखना, ये तीनों बैक्टीरियल डिजीजेस है, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड। न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड में डिफरेंस क्या है। तो कॉमन कोल्ड सिर्फ नेजल पैसेज में होता है, ये राइनो वायरस कॉज करता है, याद रखना।
तो राइनो वायरस ये सिर्फ नेजल पैसेज में इन्फेक्शन होता है, आपके लंग्स तक या एल्वेओलाई तक इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन निमोनिया में पूरा आपके लंग्स तक एल्वेओलाई तक इन्फेक्शन होता है। मेनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स, ये वायरस ने कॉज किया है राइनो वायरस, वो तो पहले हम बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ रहे थे। Rhinoviruses represent one such group of viruses which cause one of the most infectious human ailments, the common cold. They infect nose and respiratory passage but not lungs. ये sentence याद रखना. The common cold is characterized by nasal congestion, discharge, sore throat, वही सब खांसी, छींक, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc., which usually lasts for 3 to 7 days. Droplet resulting from cough or sneezes of infected person and either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, book, cups, doorknobs, computer keyboard और mouse etc. and cause infection in healthy person. तो ये ऐसे spread होता है. Next, amoebiasis. एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये एक प्रोटोजोआ है, याद रखना, ये प्रोटोजोआ से स्प्रेड होने वाला डिजीज है. प्रोटोजोआ पैरासाइट इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का है, जो हमने टाइफाइड देखा था वो स्मॉल इंटेस्टाइन का था. ह्यूमन विच कॉजेज अमीबायसिस, इसको अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं. सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड्स कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विद एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड. हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर्स, हाउस फ्लाई इसको कैरी करती है एंड सर्व टू ट्रांसमिट पैरासाइट फ्रॉम फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स. तो फीसिस से भी स्प्रेड होता है, जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस से हाउस फ्लाई ट्रैवल कर रही है एंड नाउ शी इज कैरिंग द प्रोटोजोआ, तो ये ऐसे भी स्प्रेड होता है. और अगर वो किसी के मतलब हाउस फ्लाई इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस पे से किसी के खाने में जाके बैठे तो ये ऐसे स्प्रेड होगा. दिस इज डिस्गस्टिंग. Food and food products, thereby contaminating them. Drinking water and contaminated by fecal matter are the main source of infection. Next, Ascariasis. देखो मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है. The common roundworm and Wuchereria, the filarial worm. ये एनिमल किंगडम में भी है, मतलब एनिमल किंगडम में ही है. Wuchereria worm है, filarial worm, and some of the helminths which are known to be pathogenic to man. Ascaris, an intestinal parasite, causes ascariasis. Intestinal parasite है. Symptoms of this disease, कितने intestine के diseases है, 3 तो देख लिए अभी तक हमने. टाइफॉइड, amoebic dysentery, ascariasis. These diseases include internal bleeding, muscular pain. देखो symptoms बहुत ज़्यादा important है, तो याद रखना. Internal bleeding, muscular pain, fever, anemia and blockage of intestinal passage. The eggs of parasite are excreted along with the feces of infected person. वही चीज जो लास्ट इसमें हो रही थी. Which contaminate soil, water, plants, etc. A healthy person acquires this infection through contaminated water, vegetables, fruits. वही feces वाली चीज, infected person के feces से ये ऐसे spread होता है. नेक्स्ट है एलिफेंटियासिस, विचेरेरिया, ये उसके 2 टाइप्स. द फिलारियल वर्म causes a slowly developing chronic inflammation. तो ये क्योर नहीं होने वाला डिजीज है ऑफ ऑर्गन्स विच दे लिव इन फॉर मेनी ईयर्स. यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स, हमारे जो पैर होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, तो लोअर लिम्स के लिम्फेटिक मसल्स में ये डिजीज कॉज होता है, कॉल्ड एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस. तो उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्यूमुलेशन होने लगता है, आपका लेग एलिफेंट के लेग के जितना हो जाता है. और यहाँ पे एक और चीज़ थी, ग्रोस डिफॉर्माइटिस, इसमें मतलब जेनाइटल्स का भी स्वेल होना. द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रोस डिफॉर्माइटिस. हाँ, तो आप आपके एनसीईआरटी में इमेज देख लेना. The pathogens are transmitted to a healthy person through the bite of female mosquito vectors. फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स. और ये भी याद रखना कि बैक्टीरियल डिजीजेस कौन से हैं, वायरल डिजीजेस कौन से हैं. ये लेसन में ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है, सबके सिम्टम्स आपको याद रहने चाहिए दिमाग में, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं. रिंग वर्म. Many fungi belonging to genera Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton are responsible for ringworms. देखो ये लेसन्स में से आपको ये भी आएंगे, मैच द फॉलोइंग आ सकते हैं कि
कौन सा डिजीज कैसा है, मतलब कौन कॉज कर रहा है, वायरस बैक्टीरिया वो सारी चीज। और फिर अब सपोज रिंगवर्म, और फिर ऑप्शंस में सारी ये डाल देंगे कि विचेरेरिया ये वो। तो ऐसे आपको चीजें याद रखनी है, कुछ बहुत ईजी है, इस लेसन में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और एक बार आप ये ध्यान से कर लो ना, यू कैन डू दिस। रिंगवर्म, many fungi belonging to genera Microsporum, Trichophyton, and Epidermophyton are responsible for ringworms, which is one of the most common infectious diseases in man. रिंगवर्म में क्या होता है? देखो पहले रीड कर ले फिर बताऊंगी रिंगवर्म में होता क्या है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। जहाँ पे भी आपकी स्किन ह्यूमिड, इसमें ये फंगाई बहुत जल्दी ग्रो करेगा। रिंगवर्म्स होते हैं, बहुत से लोगों को ऐसे गर्दन पे होती है, तो वहाँ पे से जहाँ पे पसीना बहुत ज्यादा आता है, बहुत ह्यूमिड वातावरण है, वहाँ पे ऐसे रिंगवर्म बन जाता है, ड्राई हो जाती है स्किन और वो बहुत ज्यादा इचिंग करता है। वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प आर द मेन सिम्टम्स ऑफ डिजीज। ये मेन सिम्टम्स है। दीज लेजन्स आर अकम्पेन्ड बाय इंटेंस इचिंग. Heat and moisture help these fungi to grow, which makes them thrive in skin folds such as those in groin or between the toes. Ringworms are generally acquired, मैंने जैसे बोला humid body parts में ज़्यादा होता है ये, between the toes and all. Ringworms are generally acquired from soil by using towels, cloths or even comb of infected person. समझी बात? नेक्स्ट है मलेरिया। अभी ध्यान से सुनो, जो हमारा पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम दो होस्ट में रहता है, उसको दो होस्ट लगते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो पहला होस्ट उसका होता है मॉस्किटो। मॉस्किटो में उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसलिए मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट है। मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट। ह्यूमंस सेकेंडरी होस्ट है, क्योंकि ह्यूमंस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो, सेकेंडरी होस्ट। ओके, इतनी बात समझी? अभी होता क्या है देखो, ये मैं रफ कर रही हूँ। सबसे पहले तो मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड्स नाम की स्टेज होगी, उस प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइड्स नाम की स्टेज होगी। तो उसके वो क्या कहते हैं, सलाइवा में स्पोरोजोइड्स भर के बैठा है। फिर अभी ये मॉस्किटो काटेगा एक इंसान को। अभी इस इंसान को इन्फेक्टेड ह्यूमन दिखते हैं यहाँ पे, इन्फेक्टेड ह्यूमन, इसको उस मॉस्किटो ने काट लिया, तो वो स्पोरोजोइड्स इसके ब्लड में चले गए। ओके, अभी ये स्पोरोजोइड्स फटाफट जाएंगे लिवर सेल्स के पास, लिवर सेल्स के पास जाएंगे। यहाँ पे ये लिवर सेल्स को डैमेज करेंगे, मतलब लिवर सेल्स में खुद को रिप्रोड्यूस करेंगे बहुत सारे, क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं लिवर सेल बना लूँ, लिवर सेल में ये बहुत सारे और प्लाज्मोडियम बना देंगे, और फिर ये लिवर सेल से निकल के ये जाएंगे ब्लड में, ब्लड सेल्स में ये जाएंगे आरबीसी के पास, ब्लड में जाएंगे आरबीसी, आरबीसी के पास। सपोज ये डब्बा आरबीसी है, तो ये जाएंगे आरबीसी के पास। आरबीसी में भी ये खुद को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, आरबीसी को फाड़ देंगे, मतलब आरबीसी बर्स्ट हो जाएगा। आरबीसी बर्स्ट होने पे एक चीज निकलती है, उसका नाम है हेमोजोइन, इसके बदल दे रखा है आपको। ये जो हेमोजोइन सब्सटेंस है, ये कॉज करता है फीवर और चिल्स। तो कंटिन्यू ऐसे रिकरिंग फीवर आता है मलेरिया में, वो इस सब्सटेंस की वजह से आता है, बिकॉज हमारे आरबीसीज बर्स्ट हो रहे हैं। फिर ऐसे ये बहुत सारे आरबीसीज डैमेज करेंगे, और ये यहाँ पे क्या करेंगे, एक इनके गैमेटोफाइट बनाएंगे, गैमेटोफाइट या हाँ गैमेटोफाइट, ओके रुको, आरबीसी में ये गैमेटोसाइट बनाएंगे। गैमेटोसाइट्स वो सेल होती है जो गैमीट्स नहीं है, जो गैमीट्स बनाने वाली है। ह्यूमंस के अंदर गैमीट्स नहीं बनेंगे, गैमीट्स वापस मॉस्किटो के अंदर जाके बनेंगे। तो अभी ये जो गैमेटोसाइट्स है, ये जाएंगी मॉस्किटो में। मॉस्किटो में कैसे जाएंगी, कोई और मॉस्किटो आके इस इंसान को काटेगा, मॉस्किटो इस इंसान को काटेगा, फिर मॉस्किटो के अंदर चले जाएंगी गैमेटोसाइट। अभी मॉस्किटो के पेट में, मॉस्किटो की गट में, ये मॉस्किटो का पेट है, अभी समझ लो ये मॉस्किटो का पेट है। अभी मैं पूरा मॉस्किटो नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब गैमीट्स बनेंगे गैमेटोसाइट से, फिर उन गैमीट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर यहीं पे बनेंगे स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स क्या है, स्पेलिंग क्या लिख रही हूँ मैं, हाँ स्पोरोजोइड समझ लो अभी। तो ये स्पोरोजोइड्स मॉस्किटो की गट में बनेंगे, फिर ये जाके स्टोर हो जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड्स में। समझी साइकिल कैसे चल रही है? इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइड्स थे, इसने एक इन्फेक्टेड इंसान को, सॉरी इसने एक नॉर्मल इंसान को काटा, उसके अंदर स्पोरोजोइड्स चले गए, स्पोरोजोइड्स भागते भागते गए लिवर सेल्स के पास, लिवर सेल्स में उन्होंने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, फिर
रिवर्स सेल्स के बाद उन्होंने आरबीसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। उसके बाद आरबीसी फट गया, हेमोजोइन नाम का केमिकल रिलीज हुआ, उससे फीवर आया। उसके बाद इन्होंने आरबीसी में एक ऐसी स्टेज बनाई जिसको बोलते हैं गैमेटोसाइट्स, जो आगे चल के गैमीट्स प्रोड्यूस करने वाला है, लेकिन वो ह्यूमंस में गैमीट्स प्रोड्यूस नहीं करता है। अभी ये वेट कर रहे हैं गैमेटोसाइट कि मुझे कोई और मॉस्किटो आके इसका ब्लड पी ले, तो फिर ये गैमेट्स उस मॉस्किटो में चले जाएंगे। फिर प्लाज्मोडियम मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ये सेक्सुअल नहीं, मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और स्पोरोजॉइड्स बनाएगा। स्पोरोजॉइड्स जाके उस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में बैठेंगे एंड देन साइकिल रिपीट्स। समझी बात? सो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरिया। अभी रीड कर लेते हैं। Some of the human diseases are caused by protozoas too. You might have heard about malaria, the disease man has been fighting since many years. Plasmodium, a Plasmodium, a tiny protozoa, is responsible for this disease. Different species of Plasmodium, P. vivax, P. malaria, P. falciparum, are responsible for different types of malaria. Of these, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is most serious one and can even be fatal. जो प्लाज्मोडियम falciparum कॉज करता है, ये बात याद रखना, ये वाला जो प्लाज्मोडियम कॉज करता है ये मलेरिया बहुत डेंजर होता है। इट कैन इवन बी फेटल, मतलब जान भी जा सकती है आपकी। Let us take a glance at life cycle of Plasmodium. Plasmodium enters the human body as sporozoites, infectious form through the bite of infected female Anopheles mosquito. याद रखना, मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो होती है। ओके, द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल्स एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स, resulting in their rupture. The rupture of RBCs is associated with release of toxic substance hemozoin, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days. When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter mosquito's body and undergo further development. The parasites multiply within them to form sporozoites that are stored, फिर से salivary gland में store होते हैं. When these mosquitoes bite human, the sporozoites are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above. वही cycle repeat होगी. It is interesting to note that the malarial parasite requires two hosts, human and mosquitoes, to complete its life cycle. The female Anopheles mosquito is the vector transmitting agent. तो देखो ये पूरा आपको दे रखा है, ये आप एक बार ध्यान से रीड कर लेना। वही चीजें जो उधर बोली है वही हो रही है। देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा इन मॉस्किटो की गट में, फिर बनेंगे स्पोरोजॉइट्स, वो फिर से जाएंगे ब्लड में, फिर लिवर सेल्स, ये देखो ये लिवर है, फिर आरबीसीज, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू ब्लड, वही चीज है। फिर आरबीसी में सेक्सुअल स्टेजेस, गैमेटोसाइट्स डेवलप्ड इन आरबीसीज, गैमेटोसाइट्स आरबीसी में डेवलप हो रहे हैं, मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट एक बार ध्यान से वो देख लेना। नेक्स्ट है इम्यूनिटी। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू इम्यूनिटी। देखो क्या होती क्या है, ऐसे बोलते हैं ना कि इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत जल्दी रिकवर कर गया, कोई भी ऐसे सुनने में आता है ना आपके, तो इम्यूनिटी वो चीज़ होती है हमारी बॉडी की अंदर की पावर कोई भी चीज़ से फाइट करने की, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। एवरी डे वी आर एक्सपोज टू नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स, हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर्स रिजल्ट इन डिजीज। व्हाई? इतनी सारी डर्ट, जर्म्स, इन सबको हम डेली बेसिस पे एक्सपोज होते हैं, बहुत सारे, हर जगह कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एंड तो हर एक चीज हमको डिजीज कॉज नहीं करती है बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी। हमारी बॉडी के पास होती है इम्यूनिटी। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दीज फॉरेन एजेंट्स। This overall ability of host to fight the disease causing organism conferred by immune system. Immunity is of two types, innate immunity and acquired immunity. दो टाइप की immunity होती है। innate का मीनिंग है बचपन से, by birth, और acquired का मीनिंग है कि बाद में इस लाइफ में आने के बाद आपने ये इम्यूनिटी एक्वायर्ड करके लिए खुद की बॉडी में। Innate immunity is non-specific type of defense that is present at the time of birth. This is accomplished by providing different types of barriers to entry of foreign agents in our body. देखो innate immunity वो होती है लाइक आपकी सपोज आंखों में कुछ चला जाए तो अपने आप आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है, एंड वो पानी इसलिए आता है बिकॉज
उस चीज को हमको फिर से आंख से निकालना है। तो बॉडी को पता है कि कोई भी चीज कहीं से भी अंदर नहीं जानी चाहिए, इसलिए ऐसे तो बहुत सारे टाइप की इम्यूनिटी होती है। देखो, फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेल्यूलर बैरियर्स, साइटोकाइन बैरियर्स। देखो ये चारों याद रखना है, ये चारों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं और मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं, तो ये चारों याद रखना है। स्किन ऑन आवर बॉडी इज मेन बैरियर विच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्किन भी हमें प्रोटेक्ट करती है। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट also help in trapping microbes entering our body। तो ये हो गए physical barriers। Physiological barriers, acid in our stomach, saliva in the mouth, tears from eyes all prevent microbial growth। हमारे सलाइवा में भी जैसे एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को वही मार देते हैं। फिर एसिड इन स्टमक, एसिड भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है। टीयर्स फ्रॉम आइज, ये सब माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, इसलिए इनको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। सेलुलर बैरियर्स, certain type of leukocytes WBC of our body like polymorphonuclear leukocyte PMNL, neutrophils and monocytes are natural killer type of lymphocytes। ये natural killer type of lymphocytes होती है एक in the blood as well as macrophages in tissue can phagocytose and destroy microbes। microbes को खा के destroy करते हैं macrophages। तो ये है सारे cellular barriers। ये सारे जितने भी सेल्स है, लिम्फोसाइट्स एंड ऑल, ये सारे हैं सेल्यूलर बैरियर्स। WBC ये भी डिफेंस के लिए काम आते हैं। साइटोकाइन बैरियर्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स which protect non-infected cells from further viral infection। देखो, थैंक यू। Water break। Virus infected cells secrete proteins called interferons which protect non-infected cells from further infections। जो भी सेल्स को वायरसेस ने, यहाँ पे कितनी चीजें मुझे डिस्टर्ब कर रही है। देखो ये लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है, यहाँ पे माइक का वायर है। सुनो, वायरस ने जो भी सेल्स को इन्फेक्ट किया है वो प्रोटीन्स रिलीज करते हैं जिनका नाम है इंटरफेरॉन्स। याद रखना ये वायरस के लिए स्पेशली, ओके। तो वो जो इंटरफेरॉन प्रोटीन्स होते हैं वो बाकी के जो भी नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है उनको प्रोटेक्ट करेगा, फर्दर वायरल इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है वो। Acquired immunity। Acquired immunity on the other hand is pathogen specific। It is characterized by memory। ये मेमोरी के बेसिस पे होती है। Pathogen specific in the sense स्पेसिफिक पैथोजन के लिए स्पेसिफिक, ऐसे नहीं कि कोई भी पैथोजन से फाइट कर लेगी, इट्स नॉट लाइक दैट। It is characterized by memory। This means when our body encounters a pathogen for the first time, it produces a primary response which is of low intensity। Subsequent encounter, उसके बाद भी अगर सेम पैथोजन से ही हमारी बॉडी का आमना सामना हुआ तो highly intensified secondary anamnestic response बॉडी देती है। This is ascribed to the fact that our body appears to have memory of first encounter। The primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special types of lymphocytes। दो स्पेशल टाइप की lymphocytes होती है present in our blood, that is B lymphocytes and T lymphocytes। The B lymphocytes produce an army of proteins in response to pathogens। देखो जो पैथोजेंस होते हैं उनसे फाइट करने के लिए जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है बहुत सारे, और जो टी लिम्फोसाइट्स होती है वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करती लेकिन वो बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करती है। ये बात याद रखना कि वो बी लिम्फोसाइट्स को हेल्प करती है प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने में इन आवर ब्लड टू फाइट विद देम। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज है उनका नाम। द टी cells themselves do not secrete antibodies but help B cells to produce them। Each antibody molecule has 4 peptide chains। आपके इसमें एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का पिक्चर दे रखा है, आप देख लेना। 2 small called light chains, 2 longer called heavy chains, hence an antibody is represented as H2L2। Different types of antibodies are produced in our body। IgA, IgM, IgE, IgG are some of them। A cartoon of antibody is given in figure 8.4। ये यहाँ पे ही दे रखा था फिगर, मैंने लेके नहीं आई तो आप देख लेना। Because these antibodies are found in blood, the response is also called humoral immune response। एंटीबॉडीज से जो रिस्पॉन्स होता है उसको बोलते हैं humoral immune response। This is one of the 2 type of are acquired immune responses, antibody mediated। The second type is called cell mediated immune response। अभी ध्यान से पढ़ो। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और याद रखना सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ही ग्राफ्ट रिजेक्शन कराती है। मतलब जैसे
ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो किसी और का ऑर्गन बॉडी रिजेक्ट करती है उस चीज को, तो वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी करती है, इसलिए उन्हें इम्यूनो सप्रेसर्स लेने पड़ते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस कराने के लिए। द टी lymphocytes mediate CMI very often when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily. Transplantation is only remedy to enable patient to live a normal life. Then a search begins to find suitable donor. Why is it that organs cannot be taken from just anybody? किसी से भी क्यों नहीं ले सकते हैं? ये इम्यूनिटी की वजह से ही सूटेबल होना चाहिए बॉडी के लिए। किसी का भी ऑर्गन किसी की भी बॉडी में काम नहीं करता है बिकॉज इट्स अ फॉरेन ऑब्जेक्ट, सो बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एन एनिमल और द प्राइमेट और एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी मेड सिंस द ग्राफ्ट वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट स्लैश ट्रांसप्लांट। अभी आई विल टेल यू, मेरे रिलेटिव्स में हस्बैंड को उनकी वाइफ ने, मेरे रिलेटिव्स में ही है, तो उनकी वाइफ ने किडनी डोनेट की, तो उनके टाइम भी ये सारी चीजें मैच करानी पड़ी थी, एंड देन शी डोनेटेड किडनी टू देम, एंड इवन आफ्टर दिस पेशेंट हैज टू टेक immunosuppressants all his/her life. The body is unable to differentiate self and non-self cells, and the cell mediated immune response is responsible for graft rejection. एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, देखो आई विल टेल यू बेसिकली होता क्या है। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो हम ऑन पर्पस दे रहे हैं किसी को, और पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो अपने आप पास होती है, जैसे प्लासेंटा से जो इम्यूनिटीज जाती है, एंटीबॉडीज जाती है, फिर ब्रेस्ट मिल्क से जो एंटीबॉडीज जाती है, तो इसको बोलते हैं passive immunity. When a host is exposed to antigens, which may be in the form of living or dead microbes or other proteins, antibodies are produced in the host body. देखो इसका मीनिंग ये है कि जैसे हम वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन में हम ये करेंगे कि बॉडी को उस ऑर्गेनिज्म से, जिससे हमें दिक्कत है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वीक पोर्शन, इन्फेक्ट तो नहीं करे बट उसके सिर्फ एंटीजेंस दिख जाए। तो अगर एंटीजेंस दिख गए तो बॉडी होस्ट की बॉडी एंटीबॉडीज बना लेगी, तो इसको बोलते हैं, जैसे वैक्सीन में भी हम यही करते हैं कि वैक्सीन में वो ही जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बॉडी को प्रॉब्लम है या बीमारी कॉज करता है वो ही हमारी बॉडी में डालते हैं स्मॉल अमाउंट में, उससे हमारी पूरी बॉडी एंटीबॉडीज बना देती है, फिर आपको वो डिजीज नहीं होता, और अगर वो डिजीज हुआ भी तो बॉडी उससे फाइट कर लेगी। जैसे कोरोना वायरस की भी वैक्सीन थी। This type of immunity is called active immunity. Active immunity is slow and takes time to give its full effective response because antibodies बनने में देर लगेगी. Injecting the microbes deliberately during immunization, immunization मतलब वही vaccination, और infectious organisms gaining access to body during natural infections induce active immunity. जैसे small amount में अगर हमें कोई infection हो जाए या फिर कोई वायरस हमारी बॉडी में चले जाए स्मॉल अमाउंट में, तो एंटीबॉडीज बहुत फटाफट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगी और फिर आपको आगे चल के वो डिजीज नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं, मतलब ऐसा ही होता है। When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agents, it is called passive immunity. जैसे देखो अभी आगे एग्जाम्पल्स है। The yellowish fluid colostrum secreted by mother during initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect infant. The fetus also receives some antibodies from their mother through placenta during pregnancy. याद रखना मिल्क में IgA होता है। These are some examples of passive immunity. Vaccination and immunization. The principle of immunization or vaccination is based on property of memory of immune system. In vaccination, a preparation of antigenic proteins of pathogen or inactivated weakened pathogens, जैसे मैंने बोला था weakened pathogens या फिर उनके proteins वैक्सीन के रूप में are introduced into the body. The antibodies produced in the body against these antigens would neutralize the pathogenic agents during actual infection. Actual infection के टाइम तक antibodies बन रखी होगी. The vaccines also generate memory B T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with massive production of antibodies. If the person is infected with some deadly microbes to which quick immune response is required, as in tetanus, देखो बहुत सारे डिजीजेस ऐसे होते हैं जिसमें क्विकली हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है, हम वेट नहीं कर सकते कि एंटीबॉडीज बनेगी, बॉडी बनाएगी, वैसा नहीं, तो हमें एंटीबॉडीज डालनी पड़ती है, तो इसको बोलेंगे ये पैसिव इम्यूनाइजेशन के थ्रू हम एंटीबॉडीज डायरेक्टली डालते हैं। प्री फॉर्म मतलब ऑलरेडी बना के रखी हुई एंटीबॉडीज उस इंसान में डाल रहे हैं। किसमें? टीटनस में
We need to directly inject preformed antibodies or antitoxin or preparation containing antibodies to the toxin. Even in the case of snake bite, सांप काटने पर, the injection which is given to the patient contains preformed antibodies against the snake venom, मतलब जहर. This type of immunization is called passive immunization. Recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria or yeast. Vaccines produced using this approach allow large scale of production and hence greater availability of immunization. Example, hepatitis B की वैक्सीन जो है वो yeast से बनी हुई है. Next, ये सारी चीजें आपको ना देखो याद रखना है. ये तो इम्यूनिटी वाला पूरा पार्ट समझने का था. इस पे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इम्यूनिटी पे, और पहले वो डिजीजेस वाला पार्ट था, उसमें सिम्टम्स वगैरह याद रखने हैं. एलर्जी, व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस, देखो यहाँ पे सारी फालतू बात लिख रखी है, मैं बोलती हूँ. अगर आप न्यू प्लेस पे जाते हो, कहीं बहुत सारे लोगों को ऐसे होता है कि दे आर सर्टेन चीजों को वो एलर्जिक होते हैं. जैसे बहुत सारे लोगों को धूल की एलर्जी होती है, तो देर लाइक जहाँ बहुत ज्यादा धूल हो उनको खांसी आना शुरू हो जाती है, उनको छींके आती है, दिस थिंग. फिर पॉलन, माइट्स, इन चीजों से, डस्ट, इन सारी चीजों से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है. तो एलर्जी क्या होता है? हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कोई भी चीज को लेकर. लाइक किसी की बॉडी को डस्ट नहीं सहन हो रही है, तो वो डस्ट उसकी बॉडी में गई कि उसकी बॉडी लगेज रिस्पॉन्स करती है जोर से, तो वो छींक के थ्रू वो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं. देखो क्या है, हमारी जो बॉडी है इतनी स्मार्ट है, आई विल टेल यू. जैसे हम बोलते हैं कि किसी चीज को देख के मुंह में पानी आता है एंड ऑल, तो ये चीजें हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है कि कोई चीज को देख के मुंह में इसलिए पानी आ रहा है बिकॉज आवर माउथ इज फॉर्मिंग सलाइवा. अगर हम वो खाना खा ले तो हमारे मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए ऑलरेडी हमारा माउथ रेडी हो रहा होता है, सलाइवा सिक्रीट करता है. तो इट इज रियल फैक्ट दैट कोई चीज को देख के मुंह में पानी आता है बिकॉज सलाइवा सिक्रीट हो रहा है. हमारी बॉडी रेडी कर रही है खुद को उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. सेकेंड चीज, फिर जैसे टीयर्स, मैंने आंखों का भी बोला था पहले ही कि जब कुछ आंखों में चले जाता है तो अपने आप आंखों में पानी इसलिए आता है, इट्स अ रिस्पॉन्स कि वो जो भी आंखों में गया है वो निकल जाए. छींक क्यों आती है? कि कुछ भी हमारे नेजल पैसेज में है एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल्स, तो वो निकल जाए, तो छींक के थ्रू वो निकलते हैं. दीज आर आवर बॉडीज रेस्पॉन्सेस. तो ये एलर्जी में भी यही होता है. द एक्सैजरेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन एनवायरमेंट is called allergy. The substances to which such immune responses produced are called allergens. The antibodies produced to these are IgE type. IgE type की antibodies produce होती है, याद रखना, allergy की E. Common examples of allergens are mites in dust, pollen, animal dander, etc. Symptoms of allergic reactions include sneezing, watery eyes, running nose, सारी चीजें मैंने बताई, and difficulty in breathing. Allergy is due to रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. ये भी याद रखना, कहाँ से? मास्ट सेल से. फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस and reaction study. The use of drugs like antihistamine, adrenaline, and steroids quickly reduce the symptoms of allergy. Somehow, modern day lifestyle has resulted in lowering immunity and more sensitivity to allergens. आजकल दिन ब दिन हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं एलर्जेंस को. More and more children in metro cities of India suffer from allergies and asthma due to sensitivity to environment. सब लोग, अगर हम बच्चों को ऐसे बहुत एक्सट्रीमली प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो वो बच्चे वीक हो जाते हैं बिकॉज वो इन सारी चीज़ों को लाइक वो एक्सटर्नल एंटीजेंस और उससे एक्सपोज उनकी बॉडी हुई ही नहीं, तो उनकी बॉडी रेडी नहीं है, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनी ही नहीं है. दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट प्रोवाइडेड इन अर्ली लाइफ. बचपन में बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा था, इसलिए माँ का लाडला लाडली दोनों बिगड़ गए, मतलब वही उनकी बॉडी रेडी नहीं होती है. नेक्स्ट है ऑटो इम्यूनिटी. Memory based acquired immunity evolved in higher vertebrates based on ability to differentiate foreign organisms pathogen from self cells. While we still do not understand basis of this two corollaries of this ability to have to be understood. One higher, देखो ऑटो इम्यूनिटी होती क्या है कि हम फॉरेन ऑब्जेक्ट और खुद के सेल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जब ये एबिलिटी लूज हो जाती है तब हमको होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस. मतलब यही डिजीज नहीं होता है बट ऑटो इम्यून डिजीज होता है कोई ना कोई. तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस विच अफेक्ट्स मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है. इसमें हमारी बॉडी भूल जाती है कि सेल्स कौन से है और दूसरे सेल्स कौन से हैं.
distinguish foreign molecules as well as foreign organisms. Most of the experimental immunology deals with this aspect. Two, sometimes due to genetic and other unknown reasons, the body attacks cells. याद रखना autoimmune diseases में ही होता है. This results in damage to body and is called autoimmune disease. इसका example क्या है? Rheumatoid arthritis. देखो, next is immune system in the body. The human immune system consists of lymphoid organs, tissues, cells, and soluble molecules like antibodies. As you have read, immune system is unique in the sense it recognizes foreign antigens. वो foreign antigens को recognize करता है, responds to these, and remembers them. The immune system also plays an important role in allergic reactions, autoimmune diseases, and organ transplantation. Lymphoid organs. These are the organs where origin and maturation and proliferation of lymphocytes occur. देखो, दो टाइप के lymphoid organs होते हैं. The primary lymphoid organs, देखो primary lymphoid organs दो है, वो है bone marrow और thymus, where immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes. बोन मैरो और थाइमस वो जगह है जहाँ पे जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मेच्योर होते हैं, वो डिफरेंशिएट होते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में, वो जाके बन जाते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स. आफ्टर मैच्योरेशन द लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. देखो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स. ये सारे है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स. अपेंडिक्स अभी लाइक वर्ड भी सुन के मुझे अजीब भी फील होता है because I got it removed. The secondary lymphoid organs provide sites for interaction of lymphocytes with antigen. देखो ये साइट प्रोवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन होता है lymphocytes का एंटीजन से, which then proliferate to become effector cells. The location of various lymphoid organs in human body is shown. देखो वो फिगर दे रखी है, वहाँ पे बताइए बहुत सारे इसकी लोकेशन. The bone marrow is main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced. Bone marrow में सारे lymphocytes और blood cells produce होते हैं. The thymus is lobed organ located near the heart and beneath the breastbone. याद रखना अभी ये sentence इतना 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 important है. I will highlight it. ये क्वेश्चन है. The thymus कौन सा organ है? Is a lobed organ. Okay, ये वाली चीज ठीक है. Near the heart and beneath the breastbone. तो क्या है ये thymus? The thymus is quite large at the time of birth but keeps reducing in size with the age, and by the time puberty is attained it reduces to a very small size. Both bone marrow and thymus provides microenvironments for development and maturation of T lymphocytes. याद रखना ये वाला सेंटेंस, बोन मैरो और थाइमस दोनों माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं मैच्योरेशन ऑफ T lymphocytes के लिए. The spleen is large bean shaped organ is mainly अभी यहाँ से spleen का भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सब याद रखना है. The spleen is large bean shaped organ. It mainly contains lymphocytes and phagocytes. It acts as filter of blood by trapping blood-borne microorganisms. Spleen देखो यही फिल्टर है, फिर यही है रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स. The lymph nodes are small solid structures located at different points along the lymphatic system. Lymphatic system में lymph nodes अलग अलग जगह पे distributed होते हैं. Lymph nodes serve to trap microorganisms or other antigens which happen to get into lymph and tissue fluid. तो लिम्फ नोड्स वो जगह होती है जहाँ पे टिश्यू फ्लूइड में जो भी एंटीजेंस एंड ऑल है फॉरेन बॉडीज उसको ट्रैप करने के लिए होता है. एंटीजेंस ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ lymphocytes present there and cause immune response. There is a lymphoid tissue also located within the lining of major tracts. जैसे respiratory, digestive, urogenital tracts में म्यूकोसा लाइनिंग के साथ म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid tissue भी होता है, MALT इसको बोलते हैं. It constitutes about 50% of 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी. 50% ह्यूमन बॉडी में लिम्फॉइड टिश्यू यही है, MALT मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू. म्यूकोसा वाली लेयर के साथ जो है रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स में. समझी बात. नेक्स्ट है AIDS. The word AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. This means deficiency of immune system acquired during lifetime of an individual. मतलब ये congenital नहीं है, ये बचपन से नहीं होता है. Syndrome means a group of symptoms. AIDS was first reported in 1981 and in last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million people. AIDS ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. ये वायरस से होता है जिसका नाम है HIV
HIV नाम के वायरस से ये होता है। वी विल सी ये कैसे इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले रेट्रोवायरस देखो, रेट्रोवायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस जिसमें आता है HIV। HIV जो है सबसे पहले क्या करेगा, इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, अभी मैं लिख नहीं रही हूँ बट उसका नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो इसका ये जो RNA है, रेट्रोवायरस मतलब इनके पास RNA होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो इसका ये जो RNA है, वायरल RNA, ये देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे RNA इसके अंदर दे देगा। ये क्या है, ये है हमारा माइक्रोनी मैक्रोफाज। ये ह्यूमन का मैक्रोफाज सेल है, हमारे बॉडी में जो मैक्रोफेजेस होते हैं उसके अंदर ये अपना RNA दे देगा। ओके, और उसके पास ये वायरल प्रोटीन कोड होता है, प्रोटीन कोड बाहर ही रह जाएगा, ये जेनेटिक मटेरियल अंदर जाएगा। फिर देखो वायरल RNA इंट्रोड्यूस इनटू सेल। वायरल DNA इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एक एंजाइम होती है इसके पास, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो वो क्या करती है, इसका ये जो RNA है इससे DNA बना देगी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बिकॉज DNA से RNA बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से DNA बनेगा तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए लगने वाली एंजाइम होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर यहाँ पे बन गया DNA। ओके, अभी ये DNA क्या करता है, होस्ट का जो मेन DNA है उसके साथ इंटरेक्ट करता है और उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। द वायरल RNA इज प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन। देखो वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम। इसके साथ जो DNA है, रियल हमारे होस्ट का DNA, उसके साथ ये जुड़ जाता है, उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है। फिर RNA जो बनेगा वो वायरल RNA बनेगा ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हो रही है। तो वायरल RNA बनेगा, ये है वायरल RNA। ये जो वायरल RNA है न्यू वायरसेस प्रोड्यूस करता है। ये न्यू वायरसेस हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती है, बिकॉज हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है। नोट, infected cells can survive while viruses are being replicated and released। तो ये सेल सर्वाइव कर सकता है तब भी जब ये सारी चीजें, ये सारी घटना घट रही है। अभी रीड कर लेते हैं NCERT में क्या लिखा है। AIDS is caused by human immunodeficiency virus HIV, a member of group of viruses called retrovirus which have envelope enclosing RNA genome। Transmission of HIV infection generally occurs, कहाँ पे गया, हाँ, generally occurs by sexual contact with infected person, by transfusion of contaminated blood and blood products, because ये सारी चीजें हो रही है तो ब्लड के ट्रांसफर की वजह से भी ये स्प्रेड होता है। नीडल्स शेयर करने से, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स। ड्रग्स करने के टाइम अगर नीडल शेयर कर ली तो इससे भी ये स्प्रेड होता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा, प्लासेंटा के थ्रू भी होता है। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, मतलब वेन के अंदर इंजेक्शन घुसा के, individuals who require repeated blood transfusions, and children born to a HIV infected mother. Do you know when do people need repeated blood transfusion? It is important to note that HIV AIDS is not spread by mere touch or physical contact. It spreads only through the body fluid. Hence imperative for physical or psychological well-being that the HIV AIDS infected person are not isolated from family and society। देखो ये सोसाइटी में एक टैबू भी है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि वो उस इंसान के जिसको एड्स है तो उसके नज़दीक रहने से या फिर उसके नॉर्मल कांटेक्ट से ये स्प्रेड नहीं होता है, ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स के ट्रांसपोर्ट से ही क्या बोलते हैं स्प्रेड होगा। तो वी शुड नॉट आइसोलेट देम, वी शुड नॉट ट्रीट देम बैड। देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स। देखो टाइम लैग कितना हो सकता है, यूजुअली 5 से 10 साल या फिर फ्यू मंथ्स सिम्टम्स दिखने में। After getting into body of the person, the virus enters into macrophages where RNA genomes of replicates। देखो ये वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। अभी नेक्स्ट यहाँ से रीड कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये वही है जो मैंने आपको डायग्राम पे बताया था, सब वहाँ पे बोला गया है। A widely used diagnostic test for AIDS is enzyme linked immunosorbent assay। देखो ये टेस्ट है ना एंटीजन और एंटीबॉडी बेस्ड होती है, तो याद रखना इस टेस्ट में, एलिजा टेस्ट में एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ विच इज इनएविटेबल। डेथ तो पक्की है, दिस इज अ नॉट क्यूरेबल डिजीज। और हाँ, मैं मेन चीज ये बोल रही थी कि जो एलिजा टेस्ट है
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। ये टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से होती है। तो लिसन, मेन चीज ये है कि ये आपको क्या बोलते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछेगा एंड ऑल हर जगह। तो ये चीज याद रखनी है कि एलिजा इज अ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेसिस पर बनी हुई टेस्ट। प्रिवेंशन ऑफ एड्स, एज एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज बेस्ट ऑप्शन। Moreover, HIV infection more often spreads due to conscious behavior patterns and not something that happens inadvertently, like pneumonia or typhoid. Of course, the infection in blood transfusion patients, newborns from mother, etc. may take place due to poor monitoring. अगर एक बेबी में हो रहा है, उसकी मदर से स्प्रेड हो रहा है, तो इट इज लाइक दूसरे भी रीजन से हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट लाइक आप कॉन्शियस नहीं हो ये चीजें करते टाइम। सो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? The only excuse may be ignorance, and it has been rightly said, don't die of ignorance. Do not die of ignorance. In our country, the National AIDS Control Organization, NACO, and other non-governmental organizations, NGOs, are doing a lot to educate people about AIDS. WHO has started, World Health Organization has started a number of programs to prevent the spreading of HIV infection, making blood from blood banks safe from HIV, ensuring use of only disposable needles ही use होनी चाहिए, reuse नहीं होनी चाहिए, and syringes in public and private hospitals, clinics, free distribution of condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex, and promoting regular checkups for HIV in susceptible population are some of the steps taken. ये सारी चीजें steps ली गई है. Infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden. Since then, the infection may spread to many more people. ये hide करने वाली बात नहीं है, ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. HIV AIDS infected people need sympathy instead of being shunned by society. Unless society recognizes it as a problem to be dealt with a collective manner, the chances of wider spread of disease increase manifold. In a malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent spread of this disease. तो यहाँ पे आपको morals भी सिखाए गए हैं. नेक्स्ट है कैंसर. देखो, एड्स और कैंसर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस है, इस पे से क्वेश्चंस भी बनते हैं. कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट dreaded diseases of human beings and is a major cause of death all over the globe. More than 1 million Indians suffer from cancer and large number of them die from it annually. The mechanisms that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cells, देखो oncogene जहाँ भी वर्ड आया oncogene, तो याद रखना ये कैंसर से रिलेटेड है. Its treatment and control have been some of the most intense area of research in biology and medicine. In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated. In cancer cells, there is breakdown of these regulatory mechanisms. Normal cells show a property called contact inhibition. देखो, contact inhibition क्या होता है? ये जो cells होते हैं ऐसे, तो ये एक दूसरे के contact में आने की वजह से क्या बोलेंगे उसको, डिविजन रोक लेते हैं. सेल डिवीजन रोक लेते हैं एक दूसरे की कांटेक्ट में आने की वजह से, लेकिन ये प्रॉपर्टी कैंसर सेल्स में नहीं होती है. तो कैंसर सेल्स कांटेक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी नहीं होती है उनके पास, तो वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में डिवाइड करते हैं. शो प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच कांटेक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. कांटेक्ट इनहिबिशन की वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन फिर कैंसर सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लूज हो जाता है, तो फिर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है. Cancer cells appear to have lost this property. As a result of this, cancerous cells just continue to divide, giving rise to masses of cells called tumors. Tumors are of two types, benign and malignant. दो टाइप के ट्यूमर्स होते हैं. benign tumors वो होते हैं जो एक ही जगह पे होते हैं, they don't spread to other places. malignant tumors वो होते हैं जो हर जगह spread करते हैं. Benign tumors normally remain confined to their original location and do not spread to other parts of the body and cause little damage. The malignant tumors, on the other hand, are mass of proliferating cells called neoplastic or tumor cells. These cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding of normal tissues. As these cells actively divide and grow, they also starve the normal cells. ये क्या करते हैं? देखो, ये खुद तो ग्रो करते हैं बहुत ज्यादा, फिर अभी इनको न्यूट्रिशन भी चाहिए, फूड भी चाहिए, तो जो सारा न्यूट्रिशन फूड ये बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं और नॉर्मल सेल्स को नहीं बचता, तो दे ऑल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल्स. स्टार्व मतलब भूखा रखना. नॉर्मल सेल्स को
भूखा रखते हैं ये। बाय competing for vital nutrients, cells sloughed from such tumors reach distant sites through blood, and wherever they get logged in the body, they start a new tumor there. This property is called metastasis, मतलब हर जगह स्प्रेड हो जाना और वहां पे नया ट्यूमर बनाना, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस. इज मोस्ट feared property of malignant tumors. Causes of cancer, अभी causes क्या क्या हो सकते हैं? Transformation of normal cells into cancerous neoplastic cells may be induced by physical, chemical, biological agents. These agents are called carcinogens, जो भी कैंसर कॉज करते हैं. Ionizing radiations like X-rays, gamma rays and देखो ये भी याद रखना, ionizing radiations है X-rays, gamma rays. Non-ionizing radiations like UV rays cause DNA damage leading to neoplastic transformations. क्या होता है आपके सेल्स में प्रोटो ऑन्कोजीन्स यहाँ पे है. Furthermore, several genes called cellular oncogenes, proto-oncogenes, have been identified in normal cells, which when activated under conditions could lead to oncogenic transformation of cells. ये बीच में कभी पढ़ूंगी, एक सेकंड रुको. आपके हर एक सेल्स में प्रोटो-ऑन्कोजीन्स होते हैं, एक अलग टाइप के जीन्स जिनका नाम है प्रोटो-ऑन्कोजीन. अभी जो प्रोटो का मीनिंग है वो है इनएक्टिव फॉर्म में, ऑन्को का मीनिंग है कैंसर और जीन का मीनिंग है जीन. तो प्रोटो ऑन्कोजीन है इनएक्टिव फॉर्म. जिस इंसान को कैंसर नहीं भी है, मेरे भी अंदर, आपके भी अंदर, सबके अंदर होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, मतलब हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में ये ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट है. लेकिन जब प्रोटो हट जाता है, मतलब जिस इंसान को कैंसर होगा या फिर ये जीन एक्सप्रेस करेगा, तो जो ऑन्कोजीन होता है ना वो कैंसरस होता है, मतलब उस इंसान को कैंसर है. तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स विच व्हेन एक्टिवेटेड, अगर प्रोटो ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट कर दिया जाए तो फिर वो ऑन्कोजीन बन जाते हैं. ऑन्कोजीन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उन सेल्स का जिसमें ये हुआ है, और फिर वो सेल्स बन जाते हैं कैंसरस सेल्स. The chemical carcinogens present in tobacco smoke have been identified as major cause of lung cancer, causing viruses called oncogenic viruses that have genes called viral oncogenes. समझिए यहाँ तक बात. Cancer detection and diagnosis. Early detection of cancers is essential as it allows the disease to be treated successfully in many cases. Cancer detection is based on biopsy, histopathology. Histopathology मतलब study of tissue. Histopathology studies of tissue and blood and bone marrow test for increased cell counts in the case of leukemias. In biopsy, देखो biopsy में क्या करते हैं? A piece of suspected tissue cut into thin sections is stained and examined under microscope. Histopathology study by a pathologist. तो इसमें आपके टिश्यू को स्टेन करके स्टडी किया जाता है. Techniques like radiography, use of X-ray, CT, computed tomography and MRI, magnetic resonance imaging are very useful to detect cancer of internal organs. Internal organs के लिए ये तीनों methods बहुत इफेक्टिव है. वो है रेडियोग्राफी मतलब एक्सरे यूज करके, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और MRI. Computed tomography uses X-rays to generate three-dimensional image of internals of an object. MRI uses strong magnetic fields and non-ionizing radiations to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. तो ये ऐसे वर्क्स नहीं, ऐसे वर्क करती है ये मेथड्स. कंप्यूटर टोमोग्राफी में एक्सरेज यूज की है, MRI में मैग्नेटिक फील्ड यूज की है टू डिटेक्ट कैंसर. Antibodies against cancer-specific antigens are also used for detection in certain cancers. Techniques of molecular biology can be applied to detect genes in individuals with inherited susceptibility to certain cancers. जिसमें भी ऐसे डाउट है तो उसमें ये टेक्निक्स करा के, बायोलॉजिकल टेक्निक्स करा के पता किया जा सकता है कि किसमें कैंसर है किसमें नहीं. Identification of such genes which predispose an individual to certain cancers may be very helpful in prevention of cancers. Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogens to which they are susceptible. Tobacco और smoke lung cancer cause करते हैं. तो इससे जिन लोगों में पहले से ही डाउट है कि इनको कैंसर हो सकता है, उन्होंने दूर ही रहना चाहिए. Treatment of cancer. The common approaches for treatment of cancer are surgery, radiation therapy और immunotherapy. ये methods use होती है. In radiotherapy, tumor cells are irradiated lethally, taking proper care of normal tissues surrounding the tumor mass. Several chemotherapeutic drugs are used to kill cancerous cells. Some of these are specific for particular tumors. Majority of drugs have side effects like hair loss, anemia, etc.
मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ये सब कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। Therefore, the patients are given substances called biological response modifiers such as alpha interferon, which activates the immune system. Immune system अब activate हो जा रहा है alpha interferon देने के बाद, मतलब रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स देने के बाद इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर, तो एक्टिवेट हो जाता है उनका इम्यून सिस्टम एंड देन इट हेल्प्स डिस्ट्रॉइंग ट्यूमर। नेक्स्ट है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। देखो यहाँ से सारा रीड करने वाला पार्ट है, नहीं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, वेट यहाँ से देखो, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ से है 3 ड्रग्स, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोका अल्कोलॉइड्स। ये इतना 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 इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से डेफिनेटली 101% क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो याद रखो, यहाँ से 3 ड्रग्स वाला पार्ट आप एकदम ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ, और उसके आगे देखो, उसके आगे क्या है कि उसके आगे सारी जस्ट इन्फो वाली चीज दे रखी है, उसके आगे कुछ नहीं है, तो आप आपका रीड कर लेना। मे बी मैं कराऊंगी रीड, पर इच्छा तो है नहीं मेरी, बिकॉज कुछ भी नहीं दे रखा, जस्ट मेजर्स दे रखे कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो ये सारी चीजें, बहुत सारी मॉरल एथिकल चीजें दे रखी है जो टीनेजर्स को पता होनी चाहिए, दैट इज इट। तो आप एक बार ध्यान से रीड करना। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इफ यू कांट हेल्प योर सेल्फ, नोबडी एल्स इज गोइंग टू हेल्प यू। इसमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, बिकॉज नोबडी, लिटरली नोबडी, कोई भी चीज आपकी उतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता है जितनी आप कर सकते हो। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी भी मैंने देखा है कि आपको एकदम ध्यान से खुद से शांति से बैठ के यू हैव टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर एनसीईआरटी, तब जाके चीजें याद होती है, तब जाके हर एक चीज समझ में आती है। इट्स नॉट लाइक अगर मैं ये लेक्चर में भी आपको पढ़ पढ़ के बताऊं, सेंटेंसेस रीड करके उनको एक्सप्लेन करूं, आपके दिमाग में मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो जाएगा, बट एनसीईआरटी की हर एक लाइन लर्न करने के लिए आपको खुद के प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे, खुद को ध्यान से एनसीईआरटी को बार बार रीड करना पड़ेगा। 2 साल मैं आपको बोल रही हूँ ना, पूरे अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पूरे 2 साल एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपने एनसीईआरटी रीड नहीं की। उन्हीं बच्चों को लर्न होती है। और नोट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एनसीईआरटी की छोटी छोटी चीजें याद रखने के लिए आपको खुद के हैंडमेड नोट्स चाहिए। एनसीईआरटी की चीजों को प्रॉपरली अलाइन वे में लिखा हुआ होना चाहिए। आई थिंक बहुत देर का भाषण हो गया, लेट्स स्टार्ट। सर्विस एंड statistics show that use of drugs and alcohol has been on rise, especially among the youth. This is really a cause of concern as it could result in many harmful effects. Proper education and guidance would enable youth to safeguard themselves against these dangerous behavior patterns and follow healthy lifestyle. The drugs which are commonly abused are opioids, cannabinoids and coca alkaloids. ये 3 categories है. Majority of these are obtained from flowering plants. Some are obtained from fungi. Opioids are drugs which bind to specific opioid receptor present in our central nervous system. मैं आपको बोलती हूँ कि इसके नोट्स ऐसे बनाना कि opioids लिखना ऊपर, उसकी हर एक चीज, हर एक सेंटेंस आपको छोटे छोटे इसमें नोट करना है, बिकॉज हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। इसका रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। हेरोइन, कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक, इज केमिकली डायएसिटाइल मॉर्फिन which is a white odorless bitter crystalline compound. याद रखना, हेरोइन क्या है? डायएसिटाइल मॉर्फिन, मतलब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कराने के बाद बनता है हेरोइन, जो है white odorless bitter crystalline compound. This is obtained by acetylation of morphine, which is extracted from morphine. कहाँ से extract किया जाता है? Latex of poppy plant, Papaver somniferum इसका नाम है। Generally taken by snorting and injection. स्नॉटिंग और इंजेक्शन से जनरली ये लिया जाता है। हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट, याद रखना, हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट, ये हमारी बॉडी को स्लो डाउन करता है। नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स आर ग्रुप ऑफ केमिकल्स which interact with cannabinoid receptors present principally in brain. प्रिंसिपली इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट, कैनाबिनस सटाइवा. The flower tops, leaves and resin of cannabinoid plants are used in various combinations. अलग अलग combinations में यूज करके अलग अलग ड्रग्स बनते हैं। marijuana, हशीश, चरस, गांजा, generally taken by inhalation and oral ingestion.
इनहेल करके और ओरल इंजेक्शन से ये लिए जाते हैं, वो वाले स्नॉटिंग और इंजेक्शन से लिए जा रहे थे। दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये तीनों ड्रग्स वाला इस चैप्टर का। कोका अल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका। वाह, कितनी बार कोका 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 कोका। नेटिव टू साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का ये नेटिव प्लांट था इरिथ्रोजाइलम कोका। इट इंटरफेयर्स विद ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड। ये वाला सेंटेंस आपको सेंटेंसेस में भी ये वाला सेंटेंस डाल देते हैं, हर बार ऐसे सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट डालेंगे, कोकेन कॉमनली कॉल्ड एज कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड। तो हाँ, ये सेंटेंस राइट है। इट हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये स्टिमुलेट करता है बॉडी को। हेरोइन डिप्रेसेंट था। प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन causes hallucinations. Other well-known plants with hallucinogenic properties are Atropa belladonna and Datura. These days cannabinoids are also being abused by some sport persons. तो स्पोर्ट पर्सन्स यूज करते हैं बिकॉज ये एनर्जी देता है, एग्रेशन देता है, एग्रेशन की वजह से आप बेटर परफॉर्म करते हो, तो ऐसी चीजें हैं। Drugs like barbiturates, amphetamines, benzodiazepines, and other similar drugs that are normally used as medicine to help patient cope with mental illness like depression and insomnia are often abused. Abused in sense उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है जहाँ नहीं needed है, जितनी क्वांटिटी में नहीं needed है, without a prescription, without कंसल्टेशन, ये सारी चीजें यूज हो रही है। मॉर्फिन इज वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेनकिलर and is very useful in patients who have undergone surgery. उनको मॉर्फिन देते हैं। Several plants, fruits and seeds have hallucinogenic properties, have been used for hundreds of years in folk medicines, religious ceremonies, rituals all over the globe. वो होता है ना एक कांटे वाला फूल काइंड ऑफ जो शिव जी को चढ़ाते हैं, तो धतूरा प्लांट का ही होता है वो, तो उससे भी क्या बोलते हैं ड्रग्स बनते हैं। When these are taken for a purpose other than medicinal use, amounts frequency that impair one's physical, physiological and psychological functions, it constitutes drug abuse. जब ये एक नॉर्मल इंसान को, ये ड्रग्स एक नॉर्मल इंसान की नॉर्मल जिंदगी को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, उसको फिजिकली साइकोलॉजिकली इल बना रहे हैं, तो इसको ड्रग अब्यूज माना जाता है। नेक्स्ट, अभी कितना बचा है? यही सारी चीजें हैं, but we will read once. Smoking also paves the way to hard drugs. Tobacco has been used by humans for more than 400 years. It is smoked, chewed, and used as snuff. Tobacco contains large number of chemical substances, including nicotine and alkaloid. Nicotine एक alkaloid है. Nicotine stimulates adrenal gland to release adrenaline, non-adrenaline into blood circulation, both of which raise blood pressure, increase heart rate. Smoking is associated with increased incidence of cancers of lung, urinary bladder, throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer, etc. Tobacco chewing is associated with risk of cancer of oral cavity. Smoking increases CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट इंक्रीज करता है स्मोकिंग कंटेंट इन ब्लड, एंड रिड्यूसेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन, क्योंकि यही बाउंड होने लग जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। This causes oxygen deficiency in body. When one buys the packet of cigarette, one cannot miss the statutory warning that is present on the packaging, which warns against smoking and says how it is injurious to health. स्मोकिंग के पैकेट पे ही क्लियर कट लिखा होता है कि आप जो खरीद रहे हैं वो जहर है, वो आपको क्या कहते हैं, लाइक लिटरली वहां पे पिक्चर्स भी होती है कि आपको ऐसा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ये वो, और फिर भी लोग पैसे देके खरीद रहे हैं बीमारियां, injurious to health. Yet smoking is very prevalent in society, both among young and old. Knowing the dangers of smoking and chewing tobacco and its addictive nature, the youth and old need to avoid these habits. Any addict requires counseling and medical help to get rid of the habit. Next है adolescence and drug alcohol abuse.
Next है adolescence and drug alcohol abuse. Adolescence means both a period and a process during which a child becomes mature in terms of her attitudes, beliefs, or effective participation in society. The period between 12 से 18 साल may be thought as adolescence period. In other words, adolescence is bridge of linking childhood and adulthood. Adolescence is accompanied by several biological and behavioral changes. Adolescence thus is a very vulnerable phase of mental and psychological development of an individual. Curiosity, need for adventure and excitement, and experimentation constitute common causes which motivate youngsters towards drug and alcohol abuse. ये सारी चीजें youngsters को motivate करती है कि जाओ drugs करो and all. A child's natural curiosity motivates him or her to experiment. This is complicated further by effects that might be perceived as benefits of alcohol or drug use. Thus, the first time of drugs or alcohol may be out of curiosity or experimentation, but later the child starts using these to escape facing problems. Of late, stress and pressure to excel in academics, examination. देखो, basically ये सारी चीज़ों की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से बहुत सी बार लोग ड्रग्स एंड ऑल में पड़ जाते हैं बिकॉज यू नो ड्रग्स गिव टेम्पररी satisfaction, temporary pleasure, temporary a feeling of relaxment or excitement or something like that. Drugs make you feel better. So इसलिए बहुत लोग ड्रग्स करते हैं, बहुत लोग टेंशन में करते हैं, बहुत लोग और एक्साइटमेंट करते हैं. बच्चे इन सारी चीज़ों में पड़ जाते हैं. दे स्पॉइल देयर लाइफ, they waste their time on these all things, they waste their energy, they waste their money, they waste their body, they are lost. So यही सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है. बहुत सारे लोग पीयर प्रेशर में आके करते हैं ये वो वही सारी चीज़ें. फिर यहाँ पे क्या है, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस. ये आप रीड कर लेना, यहाँ पे तो ज्यादा कुछ नहीं दे रखा. देखो, विथड्रॉल सिंड्रोम. इफ अ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, मतलब सडनली अगर हमने रेगुलर डोज ऑफ, जो इंसान बहुत टाइम से ड्रग्स ले रहा है उसने कंटिन्यू किया, तो विथड्रॉल सिंड्रोम होता है. उसमें लाइक बहुत से बार करने लगते हैं. दे फील अनकंफर्टेबल. उनको ऐसा होता है कि दे डेडली वांट ड्रग्स राइट नाउ. सो देयर बॉडी, उनकी बॉडी को हैबिट हो जाती है उस चीज की. इसको बोलते हैं विथड्रॉल सिंड्रोम. Dependence leads to patient to ignore all social norms in order to get sufficient funds to satisfy his or her needs. तो इस नाद में अभी जैसा बहुत सारे जिसके पास पैसा नहीं है वो ड्रग्स में गिर गए, बहुत पैसा उन्होंने वेस्ट कर दिया एंड नाउ दे डोंट हैव मनी टू बाय ड्रग्स. लेकिन विथड्रॉल सिंड्रोम की वजह से दे डेडली नीड, उनकी बॉडी डेडली वांट ड्रग्स, तो वो गलत चीजें भी करना शुरू कर देते हैं, जैसे स्टीलिंग, ये सारी बुरी चीजें, थ्रेटनिंग पीपल एंड ऑल, ये सारी चीजें करके पैसा जमा करना और फिर उसको फिर से ड्रग्स पे स्पेंड करना. ये सारी चीजें होती है सोसाइटी में. नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं या यहाँ पे लिख रखे हैं, आपने एक बार रीड करना है कि कैसे ये अपनी बॉडी को अफेक्ट करता है. ओवरडोजिंग होने पे डेथ भी हो जाती है बहुत सारे लोगों की, कैंसर होता है. इट्स जस्ट वर्स्ट, एक ही बोलूंगी, इट्स वर्स्ट, इट स्पॉइल्स योर लाइफ. और आपको ये चैप्टर में इतना डीप में इसलिए दे रखा है बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड सम basic things about life, how to not get into bad things, because we are more vulnerable at this age. When we are in our teenage, we are more vulnerable to all the negative things. So that is why यहाँ इस एज में मैच्योरिटी होना is very important. Next, तो यस, आपको ये सारी चीजें रीड करनी है. यहाँ पे कुछ भी नया नहीं दे रखा है. रीड करूँ क्या? ओके. Those who take drugs intravenously, direct injection, जो भी ड्रग्स नीडल उससे लेते हैं उनको HIV होने का, हेपेटाइटिस बी होने का, ऐसे डेडली डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. फिर और क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे ड्रग्स के. और ये सारे साइड इफेक्ट्स है कि फीमेल में क्या होते हैं, मेल में क्या होते हैं. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो. द एज ओल्ड एडेज, रुको, The age-old adage of prevention is better than cure holds true here also. Prevent करना ही better than cure. Cure भी हो सकता है, रिहैब वगैरह होते हैं, बहुत सारी मेडिकल हेल्प सीख करनी पड़ती है, बट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. पहले ही प्रिवेंट करो. और कैसी कौन से वे में आप प्रिवेंट कर सकते हो, क्या क्या
चीजें आपको याद रखनी है। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर में आके आपको चीजें नहीं करनी है। नेवर पुश अ चाइल्ड ओवर टू हिज लिमिट्स, तो प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी को। आपको भी पीयर प्रेशर के अंडर आके कुछ भी गलत चीजें नहीं करनी है, आपको जो राइट है वही करना है। यू शुड हैव योर ओन ब्रेन, यू हैव योर ओन ब्रेन, यूज इट। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एजुकेशन होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि ये कितना डेडली हो सकता है सारे वेज में, आपकी बॉडी के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये कितना हार्मफुल हो सकता है। एजुकेशन और काउंसलिंग ये आपके पास होना चाहिए। यू शुड हैव समवन टू talk about these all things, learn more, how to prevent ourselves from these things, seeking help from parents and peers, लुकिंग फॉर डेंजर साइंस। वही डेंजर साइंस अगर आपको पता चल रहा है कि योर फ्रेंड और समवन यू नो इज इनटू दीज ऑल थिंग्स, वो इन सारी चीजों में पढ़ रहे हैं, तो लेट देयर पेरेंट्स नो, लेट देयर क्लोज ones know about these all things and help that person to get out of it. Okay, next है seeking professional and medical help. प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। तो ये सारी चीजें भी आपको रीड करनी है, कुछ एक्स्ट्रा दे नहीं रखा है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड नाउ वी आर एंडिंग द चैप्टर। आई से थैंक यू एंड रीड एनसीईआरटी ध्यान से रीड करना। ये जितना भी एंड का पार्ट है वो वाला भी एक बार ध्यान से रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है वहां पे। तब तक के लिए बाय।